श्रीमान रास रसारंभे वंशीवट तट स्थित कर्षण वेणुस्वनिर्गोपी गोपीनाथाश्रियेस्तु नः गोपीनाथाश्रियेस्तु नः। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। राधे मेरी स्वामिनी अन में राधे को दास, राधे मेरी स्वामिनी अन में राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीनियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी अने कौन 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 तपस्या की। तीनों लोक के नाथ है सो तेरो आधीन। खमा मारा नंद जी ना लाल मोरली क्यारे वगाड़ी। खमा मारा हलो हलो गोपियों दौड़ी दौड़ी जाय मोरली क्यारे वगाड़ी। जय हो खमा मारा नंद जी में तो चूल्हा ऊपर झूलता। आंधण मुँह क्या छे में तो चूल्हा ऊपर झूलता। ए आंधण उभराय जाय मोरली क्यारे वगाड़ी। हो ए खमा मारा नंद जी ना लाल मोरली क्यारे वगाड़ी। खमा मारा माथे मटुकड़ी महीनी गोड़ी। हूँ महियारण हाली रे गोकुल माँ ओ मोरा श्याम मुझने हरिवाला। माथे मटुकड़ी महीनी गोड़ी। हो
સાંકડી શેરીમાં મારા સસરાજી મળ્યા મને લાજું કાઢ્યાની ગણી આમ એ ગોકુળમાં ઓ મોરા શ્યામ મુજને હરિવાયા સાંકડી શેરીમાં મારા સસરાજી મળ્યા મને ઓ મોરા શ્યામ મુજને કાનજી તારી માં કેશે પણ અમે કાનુડો કેશું રે કાનજી તારી માં કેશે પણ અમે કાનુડો કેશું રે એટલું કેતા નહીં માને તો ગોકુળ મેલી દેશું રે માખણ ખાતા માખણ ખાતા ન આવડે કાના મુખ થયું તારું એઠું રે મુખ થયું તારું ગોપીઓએ તારું ઘર ઘેરાણું જય ખૂણામાં બેઠું રે કાનજી તારી માં કેશે પણ અમે કાનુડો કેશું રે હો એટલું કેતા નહીં માને તો ગોકુળ મેલી દેશું રે ઘૂંટણિયા બે ઘૂંટણિયા બેર હાલ તો ચાલતો બોલતો કાલું ઘેલું રે ઘૂંટણિયા બેર હાલ તો ચાલતો બોલતો કાલું ઘેલું રે કર્મ સંજોગે આવી ભરાણા ઘરમાં જોડા જોડ રે કાનજી તારી માં કેશે પણ અમે કાનુડો કેશું રે એટલું કેતા નહીં માને તો ગોકુળ મેલી દેશું રે કઠણ ચોટ છે કાળની રે મરણ મોંઘેરો માર કંઈક રાણા ને કંઈક રાજીયા એ છોડી ચાલ્યા છે સંસાર હે તે હરિનો રસ પીજીએ હે તે હરિનો રસ પીજીએ માળી વીણે છે રૂડા ફૂલડા રે કળીઓ કરે છે વિચાર આજનો દીન રણિયામણો હે કાલે આપણે શિરધાર હે તે હરિનો રસ પીજીએ હે તે હરિનો કીડી બિચારી કીડલી રે કીડીના લગનિયા લેવાય પંખી પારેવાને નોતર્યા કીડીને આવ્યા સન્માન હાલો ને એ હાલો હાલો અમે મહિયારા કંસ રાજાના વાલા કોઈને
વાગે છે રે વાગે છે વન રાવણ મોરલી વાગે છે વાગે છે રે વાગે એનો નાદ ગગનમાં ગાજે છે વન રાવણ મોરલી વાગે છે એનો નાદ ગગનમાં ગાજે છે વન રાવણ મોરલી વાગે જય હો એ મારા પાલવડે વળગી આવે કાનુડો તારો નંદરાણી પાલવડે વળગી એ હાલો હાલો તારો નંદરાણી મારા પાલવડે વળગી આવે કાનુડો તારો નંદરાણી પાલવડે વળગી આવે કાનુડો તારો નંદરાણી મને ગોપલી કહીને બોલાવે કાનુડો તારો નંદરાણી મને ગોપલી કહીને બોલાવે કાનુડો તારો નંદરાણી પાણીડા જાઉં ત્યારે પાલવ મારો તાણે છેડો જાલીને મારી વાહે વાહે આવે મને આગળ આવીને અટકાવે કાનુડો તારો નંદરાણી એ મને આગળ આવીને અટકાવે કાનુડો તારો નંદરાણી મહિડાવલો ત્યારે નેત્રા તરાવે માખણના માટે એની પાસે ઉતારે મહિડાવલો ત્યારે નેત્રા તરાવે મારા માખણના માટ ઉઠલાવે કાનુડો તારો નંદરાણી મારા માખણના માટ ઉઠલાવે કાનુડો તારો નંદરાણી મારા પાલવડે વળગી આવે કાનુડો તારો નંદરાણી એ મને ગોપની કહીને બોલાવે કાનુડો તારો નંદરાણી કિકિયારી કરી કાન છોકરા બોલાવે કિકિયારી કરી કાન છોકરા બોલાવે માખણના માટ એની પાસે લૂંટાવે માખણના માટ એની પાસે લૂંટાવે મને લાકડી લઈને ધમકાવે કાનુડો તારો નંદરાણી મને લાકડી લઈને ધમકાવે કાનુડો તારો નંદરાણી હે મારા પાલવડે વળગી આવે કાનુડો તારો નંદરાણી હવે
નહીં માને તો ઘરમાં પૂરી રાખશું. નહીં માને તો ઘરમાં પૂરી રાખશું. હવે નહીં માને તો ઘરમાં પૂરી રાખશું. હવે નહીં માને તો ઘરમાં પૂરી રાખશું. ચણિયાને ચોળી તારા કાનને પહેરાવશું. 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 ભલે ગોવિંદને ગોતવા તું આવે કાનુડો તારો નંદરાણી. એ ભલે ગોવિંદને ગોતવા તું આવે કાનુડો તારો નંદરાણી. મારા પાલવડે વળગી આવે કાનુડો તારો નંદરાણી. મને ગોપની કહીને બોલાવે કાનુડો તારો નંદરાણી. એ મારા પાલવડે વળગી આવે કાનુડો તારો નંદરાણી. મને ગોપની કહીને બોલાવે કાનુડો તારો નંદરાણી. ભાદ્રવા ભરિયા ગિરિવર હરિયા પ્રેમ પરસિયા તન તરિયા. ભાદ્રવા ભરિયા ગિરિવર હરિયા પ્રેમ પરસિયા તન તરિયા. મથુરા में गरिया फेरन भरिया उपजा वरिया वस करिया. ब्रजराज विसरिया काजन सरिया मन नहीं करिया हूँ हारी. एक हो राधे प्यारी राधे प्यारी राधे प्यारी मैं बलिहारी. गोकुलिया वो गिरधारी रे जी गोकुल. नाचतनी शंका मृग मृग पंखा धम धम धमका तुंगरूका. नाचतनी शंका मृग मृग पंखा ने धम धम धमका तुंगरूका. बोलो का डंका होवत यमका डम डम डंका डमरूका. रणपूर रणंका फिर भणंका गगन षडंका कहरेशा. ए जय देव सिद्धेशा हरण कलेशा मगन्य मेशा माहेशा. जय देव सिद्धेशा हरण कलेशा मगन्य मेशा माहेशा. हलो हलो राधे. कान कोड़ीला रंग रंगीला माधव मोहन मतवाला. कान कोड़ीला रंग रंगीला माधव मोहन मतवाला. दीन दयाला कृष्ण कृपाला नटवर नागर नंदलाला. राधा रमणा राय रूपाला छेल छबीला छोगाड़ा. शंकर दुर्लभ दर्श दीदारा भजवल भई ने
નહીં હરનારા રે જીજી ગજવડ વઈ નહીં હરનારા રે જીજી ગજવડ વઈ નહીં હરનારા राधे राधे रटो चलने आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी हो राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी ए राधे राधे ए राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 हो जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की शिष्य दादा गोविंद भगवान की श्री जगन्नाथ भगवान की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की श्री गुरुदेव भगवान की निताय गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता
श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगं पुण्यानि नामा निपठन्ति नित्यं गोविन्ददामोदरमाधवेति ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण, सो आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण के विरह में गोपियां मूर्छित सी हो रही हैं। गोपियों के हृदय में विरह ताप, विरह अग्नि की ज्वाला धधक रही है। आपको भी कभी ताप हुआ है?
वही होगा ना, सबके जीवन में विरह ताप नहीं होता है, लेकिन वो बुखार वाला ताप तो आपको अनुभव है, हमें तो है। जब बुखार होता है तो शरीर तपता है, ठीक है, शरीर तप्त हो जाता है, गर्म हो जाता है, और उस समय उस रोगी, उस बीमार बुखार वाले व्यक्ति के लिए 3 चीज करनी होती है। मैं गोपी गीत को बहुत सरल 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 बनाकर आपके बीच में रख रहा हूं। तो हमारे घर में छोटे बच्चे भी होते हैं, या हमारे जीवन में हमने देखा है कि जब बुखार आता है तो मूल रूप से 3 चीज करनी होती है। एक तो डॉक्टर को बुलाकर उनको दवाई पिलानी होती है, ठीक है। अब बच्चे गोली नहीं पीते, उसको रस दिया जाता है, उसको लिक्विड दिया जाता है। सो जो बुखार से तप्त है उसे औषधि पिलाई जाती है एक। और इतने से भी काम नहीं होता तो क्या करते हैं, उसके सिर पर पानी के पोचे रखे जाते हैं। આપણે પોતા મૂકે ને પાણીના કપડા, ભીના પાણીના કપડા सिर पे, हाथ पे। और इससे भी काम नहीं होगा, उसके साथ साथ क्या होता है, बड़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं ना, वो कुछ बोलते हैं, बेटा ठीक हो जाएगा, बेटा तुम चिंता मत करो, बेटा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये शब्द भी बहुत काम करते हैं। अभी फिलहाल कोविड सिचुएशन थी, आप सब जानते हैं, आधा तो मन का ही रोग था। सो मन से कोई वाणी से सपोर्ट कर दे, कोई बोल दे, तो वो रोग धीरे धीरे ठीक हो जाता है, पॉजिटिवली हो जाता है। तो बुखार से जो तप्त है उस व्यक्ति के लिए एक तो औषधि पिलाई जाती है, गीले पोचे रखे जाते हैं शरीर पर, कपड़े, और साथ ही साथ कुछ अच्छे वचन बोले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार गोपी का गीत के इस 8वें श्लोक में गोपियाँ ये 3 प्रार्थना कर रही हैं कि हे कृष्ण, औषधि पिला दीजिए, बाहर से ठंडे पोचे कपड़े भी रख दीजिए, और कुछ वाणी से बोल दीजिए, ताकि हमारा ये जो विरह ताप है, ये जो विरह अग्नि है, ये समाप्त हो जाएगी। मैं कई सारे ऐसे शब्द गुह्य रख रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन कथा है, बहुत बड़ा समाज बैठा है, तो सब लोग इस बात को पचा न पाए, या मेरी भी किसी हद तक योग्यता नहीं है, और इसलिए मैं आचार्यों को आगे कर रहा हूँ कि भाई आचार्यों के शब्द हैं, आप यदि उस भाव में हो तो उसे पकड़ सकते हैं। सो गोपियाँ ये 3 वस्तु चाहती हैं कि कृष्ण औषधि पिला दीजिए, वो ठंडे पोचे भी रख दीजिए, और वाणी से कुछ कह दीजिए। श्रीपाद जीव गोस्वामी वैष्णव तोषिणी में गोपी गीत के इस 8वें श्लोक का इंट्रोडक्शन देते हुए उनका पूर्वानुभाव देते हुए 4 लाइन में कुछ बता रहे हैं। आइए सीधे आचार्यों की शरण में जाकर ही इसे पढ़े सुने, तब ज्यादा रस आएगा। श्रीपाद जीव गोस्वामी वैष्णव तोषिणी टीका है ये। जीव गोस्वामी लिखते हैं, अथः तन्मुख सौरभ निवत भाषित विशेष जनित तत्पाने इच्छात्मकस्य। अथ माने अब, इस 8वें श्लोक में तन्मुख, भगवान श्री कृष्ण के मुख की सौरभ, सौरभ माने सुगंध है। अब गोपियों की लालसा जो है ना, वो धीरे धीरे बढ़ रही है। इसके पहले गोपियों ने कहा कि अपना हाथ मस्तक पर रखिए, उसके बाद कहा कि दर्शन दे दीजिए, उसके बाद कहा कि आपका चरण हमारे हृदय पर रखिए। अब क्या गोपियों की कामना है? अतः तन मुख सौरभ, कृष्ण के मुख का सौरभ सुगंध है, और तत् निवतद भाषित, और कृष्ण के मुख से निकली हुई भाषा। पूर्व में, अभी तो कृष्ण खो चुके हैं ना, अभी तो वो गायब हैं, खोए हुए हैं, लेकिन पूर्व में गोपियां कृष्ण के मुख की सौरभ अनेकों बार ले चुकी है,
और कृष्ण के मुख की भाषा, उनकी वाणी बहुत सुन चुकी है। कृष्ण के विरह में वे बातें गोपियों को याद आ रही हैं। कहते हैं विशेष जनित तत्पाने इच्छात्मकस्य। अब गोपियों को कृष्ण की उस वाणी को, उस भाषा को, उस सौरभ सुगंध को पीने की कामना, इच्छा उत्पन्न हो रही है। और कृष्ण की वह भाषा, कृष्ण की वह वाणी, वह सौरभ को याद करके दूसरी लाइन में मोह पर्यंत दशा आगमन, गोपियों की मोह पर्यंत दशा आ चुकी है। मोह का अर्थ ये हमारा आपका मोह नहीं, जो हमारा संसार में मोह, यहां मोह का अर्थ है मूर्छित। कृष्ण के विरह में कृष्ण की वाणी, कृष्ण का मुख, उनकी सुगंध, वह सौरभ याद करके मोह पर्यंत दशा, गोपियों की मोह पर्यंत मूर्छित अवस्था हो रही है। सो मोह पर्यंत दशा आगमन तापस्य। और गोपियों को वह कृष्ण का विरह बहुत बड़ा ताप उत्पन्न कर रहा है, और उस ताप से वह मूर्छित सी हो रही है। गोपियों के मन में संभ्रम हो रहा है, मानो कृष्ण प्रकट होकर कहे कि अरे भाई, आपने कहा कि चरण हृदय पर रख दो, अब चरण तो हृदय पर रख दिया, आप कितना आप मांग रही हो? इसके पहले आपने मांगा कि चरण हृदय पर रखो, तो चलो मैंने रख दिया। गोपियों के मन में यह आशंका हो, जीव गोस्वामी आगे लिखते हैं कि हे कृष्ण, यदि आपके मन में ऐसा प्रश्न हो कि आप तो चरण पर, हृदय पर चरण रखने की इच्छा कर रही थी 7वें श्लोक में, तो आशंका मान नामा अस्मिन वाग संगे। हे कृष्ण, आपका चरण हमारे हृदय पर रखने से बाहर का ताप दूर हुआ, अंदर का ताप तो अभी बाकी है। कृष्ण, यदि आपको ऐसी आशंका हो कि चरण हृदय पर रख देने के बाद सब कुछ ठीक हो गया, तो ऐसा नहीं है। कृष्ण, आपके चरण हमारे हृदय पर रखने से बाहर का ताप दूर हुआ, अब अंदर का ताप बाकी है। सो अंदर का ताप कैसे मिटेगा? जीव गोस्वामी कहते हैं वाग संगे, वाणी के संग से, पेय औषधम इव अंतरश्च संगमनीयम, अपने पेय औषधि की तरह अपने वाणी के संग से हमारे अंदर के दुख को मिटा दीजिए। और तन मुख सुधाकर सुधा रसम इव अपि प्रार्थम प्रार्थयन्ते। और हे कृष्ण, आपके मुख के अमृत का रस पिला दीजिए, ऐसी प्रार्थना गोपियां इस ऊपर वाले यहाँ पर 8वें श्लोक में कर रही है। क्या प्रार्थना है? भाव से गाइए। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करी रिमा वीरमुयति विधि करी रिमा वीरमुयति अधरसी धुना प्याययस्वना अधरसी धुना प्याययस्वना। गोपियाँ कहती हैं, पहले श्लोक का भाव समझ लीजिए, फिर एक एक शब्द का परिचय हम आपको देंगे। अन्वयी के अनुसार यदि इसे देखा जाए तो गोपियाँ कहती हैं
कि हे पुष्करेक्षण, हे कमल जैसे नेत्रों वाले, हे वीर, दो संबोधन है, हे वीर, हे पुष्करेक्षण, मधुर या गिरा, आपकी मधुर गिरा, और वल्गु वाक्य या आपके सुंदर वचन, आपकी मधुर वाणी और आपके सुंदर वचन जो बुद्ध मनोज्ञया, जो बड़े बड़े विद्वानों को आनंद देते हैं, कृपया करके आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए, क्योंकि विधि करी रीमा, हम आपकी दासी हो चुकी है। कृष्ण आपके मुख से वचन सुन सुनकर अब तो हम आपकी दासी हो चुकी हैं। आपके वचन, आपके शब्द हमको दासी कर रहे हैं। तो हे वीर, हम लोग मोहित हो रही हैं, हम मूर्छित हो रही हैं, अतः आप प्रकट हो जाइए और प्रकट होकर अधर रसी धुना, आपके अधर से अमृत रस का आस्वादन कराइए, आपके मुख से उस वाणी का आस्वादन कराइए और हमें धन्य कीजिए। इस प्रकार से गोपियां 8वें श्लोक में भगवान से प्रार्थना करती। अब अनुवाद किया जाए तो केवल इतना ही है, हैं? इतने में संतुष्ट हो तो मैं आगे बढ़ूं 9वें श्लोक में, हैं? लेकिन इसका आस्वादन करना हो तब तो कुछ अलग होगा, हैं? तो ये आस्वादन में भी हम लोग परिचय केवल कर रहे हैं, एक एक शब्द का परिचय। इस 8वें श्लोक में 2 संबोधन है, गोपिया कृष्ण को 2 संबोधन दे रही है, पुष्करेक्षण और वीर। सबसे पहले हम लोग पुष्करेक्षण के विषय में देखें। पुष्करेक्षण का अर्थ है, पुष्कर माने कमल, फूल। पुष्कर का अर्थ है कमल और ईक्षण माने आंख। कमल जैसी आंखें हैं जिसकी, उसे कहते हैं पुष्करेक्षण। सो भगवान श्री कृष्ण की आंखें कमल जैसी सुंदर है। अब कमल की पंखड़ी आपने देखी होगी। कमल की पंखड़ी बीच में से मोटी होती हैं और दोनों साइड से ऐसे लंबी होती हैं। ऐसा आचार्य गण कहते हैं कि कृष्ण की आंखें कमल के पत्ते के समान कान तक लंबी थी। आजकल छोटे छोटे बच्चों की होती नहीं है, लेकिन वो काजल डालकर उसको यहाँ तक करते हैं। वो जमाना भी अभी गया, अभी तो कौन काजल लगाता है। लेकिन अब तो लाइनर का जमाना है, अलग अलग रंग बेरंगी। लेकिन कृष्ण की आंखें कान तक लंबी चौड़ी थी। सो पुष्करेक्षण, किसी भी व्यक्ति की सुंदरता में आंख बहुत मायने रखती है। और यहां पर गोपियां कृष्ण को अपना अधर सुधा, अपनी वचनामृत, वाणी अमृत, मुख अमृत का आस्वादन करना चाहती हैं, लेकिन साथ ही साथ अधरामृत का आस्वादन करते हुए कृष्ण के नेत्रों को भी देखना चाहती हैं। मतलब ये एक श्रृंगार की एक उत्कृष्ट सीमा है। सो हे कृष्ण पुष्करेक्षण, कमल जैसी आंखों वाले कृष्ण, कृपया करके आप हमारी ओर देखिए। अब आचार्यों ने तो इस पर बहुत सुंदर सुंदर, अब देखो ये पुष्करेक्षण, कृष्ण की आंखें कमल जैसी सुंदर है, तो केवल आंखें ही कमल जैसी सुंदर नहीं है, उपलक्षण से कृष्ण के हाथ भी कमल जैसे कोमल है, उनके चरण, उनके मुख, उनके कान, नाक, सबकी सुंदरता समझ लेनी चाहिए। पर यहां पर मूल रूप से गोपियां आंखों के विषय में कहती हैं। अच्छा, अब आचार्यों के पास हम जाए। पुष्करम बहुत सुंदर भाव है, बहुत अच्छा लगता है। पुष्करम हृदय कमलम तस्मिन ईक्षणम यस्य। पुष्कर का अर्थ क्या है? तो पुष्कर का व्याकरण में, शास्त्रों में एक अर्थ दिया गया है, पुष्करम हृदय कमलम। पुष्कर का देखो दोनों में समान विभक्ति लगी है, पुष्करम हृदय कमलम। अब आपको इतना तो कथा सुनने का अभ्यास होना चाहिए कि ऊपर जो श्लोक टंगा है
उसमें पुष्करेक्षण पहली लाइन के अंतिम जो शब्द है वो संबोधन है, और उस संबोधन के ऊपर मैं व्याख्या दे रहा हूं। फिर दूसरे शब्द में, फिर तीसरे शब्द में, ऐसे ऐसे हम कथा सुनेंगे। तो पुष्करेक्षण बहुत सुंदर कहते हैं, पुष्करम हृदय कमलम। पुष्कर का अर्थ होता है हृदय कमल। तो पुष्कर माने कमल, और हृदय को भी कमल कहते हैं। तो हम सब का हृदय जो है ना वो पुष्कर है। हम सब का हृदय कमल पुष्कर है। और तस्मिन ईक्षणम यस्य पुष्करम, इसका अर्थ ये हुआ कि जिसका दर्शन हृदय रूपी कमल में होता है उसे पुष्करेक्षण कहते हैं। कुछ लोग कहेंगे मुझे भगवान को देखना, यहां देखो वहां देखो, अपने हृदय में देख, क्योंकि भगवान का सबसे पहला प्राकट्य हृदय में, दिल में होता है, और फिर अलग अलग जगह पर होता है। राम आए तो कहां आए? कौशल्या के हृदय गर्भ में। कृष्ण आए तो कहां आए? मां देवकी के हृदय गर्भ में। तो पुष्कर का अर्थ है हृदय कमल, और जिसका दर्शन तस्मिन ईक्षणम यस्य पुष्करम, जिसका दर्शन हृदय कमल में होता है उसे पुष्करेक्षण कहते हैं। और दूसरा इसका भाव क्या है? दूसरी लाइन में कहते हैं, न बहु वक्तव्यम भवता पुरतः। बहुत सुंदर बात। हे कृष्ण, आपका दर्शन प्रत्येक जीव के हृदय में होता है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक जीव के हृदय कमल में आप विराजमान हो, और जब आप प्रत्येक जीव के हृदय कमल में रहते हो तो हमारे हृदय में भी आप रहते होंगे। और कृष्ण, जब आप हमारे हृदय में रहते हो तो आपको तो पता ही है हमारी चिंता क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो पुष्करेक्षण कहकर गोपियां ये जताना चाहती हैं, कृष्ण हमें आपको ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप हमारे दिल में बैठे हो, और दिल में बैठकर आप भी हमारा भाव, हमारी चिंता, हमारा शोक, हमारा दुख आप समझ सकते हो। अतः गोपियां कृष्ण को पुष्करेक्षण कहती है। तीसरा भाव, एक आचार्य ने और एक भाव दिया, बहुत सुंदर ये भाव है। गोपियां कहती हैं पुष्करेक्षण, पुष्करेक्षण से क्या कहना चाहती हैं कि हे पुष्करेक्षण, पुष्करवत ईक्षणे नेत्रे यस्य तत् संबुद्धो हे पुष्करेक्षण। कृष्ण, जब किसी को बुखार हो जाए तो 3 चीज करनी पड़ती हैं। एक तो उसे दवाई पिलानी पड़ती है। तो इस श्लोक के अंत में आप देखिए, अधर सीधु ना, आपका अधर अमृत हमको पिलाइए, तो ये हो गया। फिर और क्या करना पड़ता है? उसको अच्छे वचन बोलने पड़ते हैं, भाई जल्दी तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो, कल सुबह ठीक हो जाओगे। तो मधुर या गिरा वल्गु वाक्य, या जो पहली लाइन में आगे आएगा हम लोग सुनेंगे। तो मधुर वचनों के द्वारा वो भी हो गया। लेकिन एक चीज और भी रह गई, क्या? वो ठंडे पोचे जो रखने ना, ठंडे कपड़े, वो ताप है, विरह ताप, तो ठंडे कपड़े। तो कृष्ण, आप अपने नेत्रों से, आप अपनी कमल के समान सुंदर आंखों से, आपकी दृष्टि से हमें देखिए, ताकि हमारा ये विरह ताप ठंडा हो जाए, हमारा विरह ताप शांत हो जाए। तो गोपियां पुष्करेक्षण से ये कहना चाहती हैं, अधरा अमृत पिलाइए, मीठे वचन भी बोलिए, और अपने नेत्रों से हमें आप देखिए। सो कमल तुल्य नयनों से सस्नेह, आप स्नेह रूपी नेत्र से, सरस नेत्रों से, सुगंधित सुस्मित अवलोकन के द्वारा हमारी ओर दृष्टि करते हुए हमारे तीव्र ताप का क्षमन करे, इसलिए पुष्करेक्षण। एक आचार्य ने बहुत सुंदर कहा, और मेरे जैसे साधक, हम तो पापा पगली करने वाले लोग, मेरे लिए बहुत अच्छी बात, वे कहते हैं, क्रिया सर्वापि सेवात्र परम कार्यो न विद्यते। बहुत सुंदर यहां पर निरूपित किया जा रहा है। पुष्करेक्षण कहकर गोपियां कृष्ण को इंडिकेट कर रही है। कृष्ण को तो सब पता ही है, वो हम सबको इंडिकेट हो रहा है। क्या इंडिकेट कर रही है? बोले कृष्ण क्रिया, हमारी जो क्रिया है, सर्व अपि सेव अत्र, हमारी क्रिया
बाहर से यदि कोई देखे ना तो उसे गलत लग सकती है। कृष्ण हमारी क्रिया जो है बाहर से कुछ लोगों को गलत लग सकती है कि ये गोपियों को क्या हो गया। कृष्ण का आलिंगन, अधरामृत और वो कृष्ण का चरण वक्षस्थल पर, हमारी क्रिया बाहर से किसी को गलत लग सकती है, लेकिन पुष्करेक्षण कृष्ण आप हृदय कमल में विराजते हो, इसलिए हमारी क्रिया नहीं, हमारी क्रिया से हमारे भाव को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। सो गोपियों की ये क्रिया जो है ना, उससे कोटि गुना उत्तम उनका भाव है, और उस क्रिया से गोपियां अपना भाव व्यक्त कर रही है। भक्तों, विष्णु पुराण आपने कभी सुना, पढ़ा? मत पढ़िएगा, जरूरत नहीं है, लेकिन विष्णु पुराण का सार गर्हित एक श्लोक में आपके बीच में रखूं। इसमें कहते हैं कि या प्रीतिर अविवेकानाम, एक भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, और भक्त भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि या जो प्रीति अविवेकी, अविवेकी माने संसार के भौतिक वस्तु में मग्न है, जिसको आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है, शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, संसार में रचा पचा हुआ आदमी। तो या प्रीतिर अविवेकानाम, संसार में रचा पचा, संसार में अटैच आसक्त आदमी, जितना प्रेम विषयेषु अनपायिनी, जितना प्रेम संसार के विषय भोगों से करता है, और विषय भोगों में भी जितना प्रेम कोई संसार का कामी आदमी किसी लड़की का या किसी स्त्री का करता है, हे भगवान विष्णु, हे कृष्ण, त्वाम अनुस्मरत, मैं वैसा ही स्मरण करूं। किसका? आपका। संसार का कोई विषयी आदमी किसी स्त्री का जैसे स्मरण करता है, त्वाम अनुस्मरण, सामे हृदया, सामे मेरे हृदय में आपका वैसे ही स्मरण हो। पूरी रामायण कहने के बाद, राम कथा आप सब जानते हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, पूरी रामायण हो गई, और अब रामायण का अंत करने का समय आया। तो किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पूछा कि अब रामायण का अंत कर रहे हो, तो अंत में आप भगवान को क्या प्रार्थना करोगे? तो रामायण के अंत में यह प्रार्थना करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी कलम छोड़ी। तब आपके मन में होगा कि वो कौन सी प्रार्थना होगी, मतलब क्योंकि जो लास्ट में कहा जाता है ना, वो सबसे उत्तम भारी चीज होती है। अंतिम वचन जो है ना, बहुत उत्तर पक्ष बलवान होता है। सो उत्तर कांड में अंत में रामायण का अंत गोस्वामी जी करते हैं, कामी नारी पियारी जिमी, लोभिन प्रिय जिमी दाम। शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए। कामी नारी पियारी जिमी, लोभिन प्रिय जिमी दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय, लागहु मोहि तुम राम, लागहु मोहि तुम राम। हे प्रभु, कामी ही नारी प्यारी जिमी। प्रभु, जैसे कोई कामी व्यक्ति को कोई नारी प्यारी लगती है, कामी व्यक्ति को कोई स्त्री प्यारी, जितनी सुंदर, जितनी प्यारी लगती है, और कोई कामी व्यक्ति उस स्त्री का रात दिन सोते उठते बैठते स्मरण करते रहता है, और लोभीय प्रिय जिमी दाम, और लोभियों को जितना धन प्रिय लगता है, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय, लागहु मोहि राम। तो जैसे कामियों को नारी प्रिय लगती है और लोभियों को धन प्रिय लगता है, उतना ही प्रिय मुझे राम लगे, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं। सोचिए गोस्वामी जी की कहाँ तक पहुंची होगी बुद्धि। सो कहने का भाव ये है कि गोपियाँ ये पुष्कर एक क्षण से ये कहना चाहती है कि हे कृष्ण, बाहर से हमारी क्रिया आपको जो भी लगे, हमारा भाव बड़ा विशुद्ध है, कृपया करके आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए।
तत्पश्चात गोपियां दूसरा संबोधन इस श्लोक में दूसरी लाइन में देती हैं वीर। पहले संबोधन के ऊपर चर्चा होती है, फिर श्लोक के ऊपर, तो पुष्कर एक क्षण हो गया। अब दूसरा संबोधन है वीर। अच्छा मुझे ये बताइए, इस दुनिया में सबसे बड़ी वीरता क्या है? इस संसार में, इस दुनिया में सबसे बड़ी वीरता क्या है, जानना चाहोगे? इस दुनिया में सबसे बड़ी वीरता है आर्त प्राणी का आर्त हनन करना। दुखी जीव मात्र, केवल मनुष्य नहीं, किसी भी प्रकार का जीव हो और वो दुखी हो, दुखी जीव का दुख दूर करना, ये सबसे बड़ी वीरता है। और जो नॉनवेज खाता है उसको तो वीर कहा ही नहीं जाएगा, वो तो पकड़ पकड़ के मार मार के दुखी करके खाते हैं। मतलब वो तो अपने आप को वीर कभी सोचे ही नहीं। वीर वो है जो दुखी जीव को सुखी करता है, या दुखी आदमी के दुख को दूर करता है, वो है वीर। यहां पर गोपियां कृष्ण को वीर कह रही हैं, तो वीर माने दो वीर। गोपियों के मन में आचार्यों ने लिखा दो वीर की बात है, एक दयावीर और दूसरे दानवीर। हे कृष्ण, आप दयावीर है, माने आप दया करने में रात दिन तत्पर रहते हैं। आपके अंदर जितनी मात्रा में दया है और आपके अंदर जितनी स्पीड, तत्परता से दया है, दुनिया में और किसी में नहीं है। तो कृष्ण, जब हम आपकी गोपियां दुखी है तो आप प्रकट होकर हम पर दया क्यों नहीं करते? ये वीर। और वीर का दूसरा तात्पर्य है दानवीर। हे कृष्ण, आप सदैव दान करने में तत्पर रहते हो, दान में आप कभी पीछे नहीं रहते। सो कृष्ण, आज आप प्रकट हो जाइए, आपके दर्शन का दान, नेत्र का दान, आपके अधर अमृत का दान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण में इतनी उदारता है, ये वीर शब्द के ऊपर कह रहा हूं, वो इतने महान, इतने उदार है। कृष्ण किसी जीव को जितना दे सकते हैं उतना और कोई नहीं दे सकता। एक तो भगवान श्री कृष्ण ने ये संसार दिया, संसार में रहने के लिए शरीर दिया, शरीर को चलाने के लिए हवा पानी प्रकाश दिया, और फिर भी ये शरीर का जन्म अच्छे परिवार में, अच्छे कुल में, अच्छे माता पिता, अच्छे संस्कार, हमारे ऊपर तो कितनी बड़ी कृपा है। इतना ही नहीं, वो भगवान संसार के जीव को परम आनंद प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, वो स्वयं अपना प्रेम प्रदान करते हैं। और संसार का आदमी थोड़ी सी भक्ति करता है तो भगवान अपना पार्षद बना, अपने जैसा बना लेते हैं। मुझे आप बताइए, विष्णु की भक्ति करने वाला वैकुंठ में जाता है और वैकुंठ में भगवान उसे चतुर्भुज बना देते हैं, अपने जैसा रूप दे देते हैं। इतना बड़ा दानवीर आपने कहीं देखा होगा? ये मंदिर वाले लोग किसी की ऑफिस में जाते हैं ना, पहले तो घुसने ही नहीं देते हैं, हमने देखा है। वो वॉचमैन को ही कहते उसको हटा, उसको यहाँ अंदर ऊपर मत आने देना। और कदाचित बेचारे ये साधु संत पहुंच भी जाए ना और रिसिप्ट बुक लेकर, तो अपनी जितनी संपत्ति उसमें से 1% क्या, थोड़ा सुगंध गंध भी नहीं देंगे। लेकिन दूसरी ओर कृष्ण को देखिए कि कोई कृष्ण की थोड़ी भी भक्ति करता है, वो अपने जैसा पार्षद, अपना लोक। कोई दुनिया में होगा कि हमें थोड़ा सा धन दे दिए, हम भीख दे दीजिए, अरे भीख क्या, चल मेरे घर पे आ जा। वो इस दुनिया में कोई आदमी अपने घर पर किसी को रखेगा? आप गाड़ी लेकर जा रहे हो, चौराहे पर कोई भिखारी मिल गया तो आप कहोगे, अरे भिखारी महाराज गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, कल से तुम मेरे घर पे रहना। बोल, यहाँ पर जितने इस सभा में बैठे कोई आदमी ऐसा कर सकता है? लेकिन मेरे कृष्ण गीता में माइक में ऐलान करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, आ जाओ आ जाओ, मेरा वैकुंठ भरा खाली है, आप सबको मैं शरण देता हूं। अब बताइए, इससे बड़ा वीर, इससे बड़ा दानवीर कौन हो सकता है? सबको बुला बुला कर कहते मेरे घर में आ जाओ। क्या इस दुखालय जगत में परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, हैरान हो रहे हो? अब बताइए, इससे बड़ा दानवीर और कौन हो सकता है, जो अपना घर ही दे देता है? और घर, चलो घर देना भी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज क्या है? अपने जैसा रूप दे देना। भगवान चतुर्भुज बना देते हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर वो
वैकुंठ में सब घूमते रहते हैं। इस प्रकार से इसलिए गोपियां कहती हैं कि हे वीर हैं। तो 2 संबोधन यहां पर समाप्त हुए। आइए अब श्लोक प्रारंभ करते हैं। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षणा विधि करीरिमा वीरमुयति अधर सिधुना प्याययस्वना। सर्वप्रथम यहां पर है मधुरया गिरा। हे कृष्ण, आप अपनी अधर सिधु नाम, आप अपनी वाणी हमें सुनाइए। तो कृष्ण की वाणी कैसी है? तो इसके 3 विशेषण यहां पर दिए गए, मधुरया गिरा, वल्गु वाक्यया और बुध मनोज्ञया। ठीक है, ये तीनों कृष्ण के वाणी के विशेषण है। जैसे वहां पर कृष्ण के चरणों के विशेषण हमने सुने ना, कि आपके चरण हमारे हृदय पर रखिए तो कथम भूतम चरणम, तो प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम एक फणि फणार्पितम, ये सब हमने सुना। अब यहां कृष्ण की वाणी की महानता है। जो वक्ता बनना चाहता है ना, हम तो बकते हैं, लेकिन किसी को यदि वक्ता बनना है, कोई अच्छी कथा, अच्छा प्रवचन, अच्छा बोलना सीखना है, ये श्लोक आप समझ लीजिए। इस श्लोक में अब बताइए, कृष्ण से अच्छा वक्ता कौन हो सकता है? कृष्ण की वाणी में जो गुण है, किस में हो सकता है? तो उतना तुम नहीं ले सकते, लेकिन पहले ये तो पता लगाए कि वाणी के गुण क्या है, किसे अच्छी वाणी कहते हैं। तो यहां पर 3 वस्तु है, मधुर या गिरा, वल्गु वाक्यया और बुध मनोज्ञा। मैं लोकल भाषा में यदि आपको कहूं ना, तो किसी भी वाणी के मतलब वैसे बहुत सारे गुण हम लोग देखेंगे, ये 3 ही नहीं है, लेकिन उसको 3 जोन में बांटा गया है। वक्ता आजकल आपको तो बनना ही है, आज नहीं तो कल, क्योंकि इतनी कथा सुनते हो तो फिर वो कथा डालोगे कहाँ? कान से भर भर के फिर कहीं तो खाली करना है। तो मैं चाहता हूँ एक दिन ऐसा है, सब लोग वक्ता बने, अपने अपने स्टैंडर्ड से सब कथा करें। जब हम कोई कुछ बोलता है तो बेसिक रूप से, हमने भी बहुत पहले ये सब सीखा है, हालांकि सीखा है मतलब सुना है, जीवन में तो नहीं उतरा, लेकिन वाणी जो है ना, उसमें 3 चीज होती है। वो एक में बहुत सारी चीज होती है, एक A B C, उसमें बहुत सारी चीज होती है, लेकिन मूल रूप से 3 चीज होती हैं। एक होता है प्रेजेंटेशन, ठीक है। दूसरा होता है सब्जेक्ट मैटर, वर्ड, शब्द, वर्ड, सब्जेक्ट, है ना। और एक होता है उसको प्रस्तुत करने का तरीका। मैंने मेरे जीवन में देखा है, कुछ लोगों के पास शब्द बहुत है, चीजें मतलब मैटर बहुत हैं, उनको कथा बहुत याद रहती। मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ कुछ ऐसे, मैं नाम देकर कह सकता हूँ, बड़े मेधावी, बहुत कुछ उन सबको याद है, लेकिन बेचारे बोल, उसका प्रेजेंटेशन नहीं है, वो है उनके पास, सीधा हमें समझ में भी आता है कि बहुत कुछ इस दुकान में बहुत माल भरा है, लेकिन बेचारा बेच नहीं पा रहा है। और कुछ लोग बोलने में एक्सपर्ट है, कड़ा है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है। कुछ लोगों के पास शब्द है, लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं है। अच्छा, प्रेजेंटेशन तो एक चीज हुई ना, उसमें भी बहुत सारी चीज होती है। प्रेजेंटेशन में क्या होता है? एक तो सूर, ये मधुर या शब्द जो है ना, वो सूर, वो प्रेजेंटेशन को इंगित करता है कि कृष्ण की वाणी में सूर बहुत अच्छा है। कृष्ण जब बोलते हैं तो सूर में बोलते हैं, वो सूर है, वो लय है। दिन में कुछ अलग सुर होता है, रात को अलग सुर, जैसा माहौल वैसा सुर, और फिर कभी पंचम कभी तृतीय सुर में होता है।
एक तो सुर में है, फिर ताल में होता है, फिर उसमें मॉड्यूलेशन होता है, कोई हास्य प्रसंग में कुछ अलग मॉड्यूलेशन, करुण प्रसंग में कुछ और मॉड्यूलेशन। ये बहुत सारे वाणी के ये सब गुण हैं। ये तो हुआ प्रेजेंटेशन वाइज, मधुरिया गिरा। फिर दूसरा है वल्गु वाक्य, या ये हुआ सब्जेक्ट वाइज प्रेजेंटेशन, सूर, राग, रागिणी, ताल, ये सब कुछ होना चाहिए। उसके साथ साथ मैटर भी होना चाहिए, है? कृष्ण के पास क्या शब्द हैं, क्या मैटर है, क्या सब्जेक्ट है। और ये दोनों के साथ साथ तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, बुद्ध मनोज्ञ, या बुद्धिमानों को समझ में आनी चाहिए। कई बार होता है, प्रभु मैं एक कथा सुनकर आया, बोले बहुत अच्छी कथा थी, इतनी अच्छी कथा थी, इतनी अच्छी कथा थी कि हमको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन कथा बहुत अच्छी थी। कथा अच्छी थी तो तुमको समझ में नहीं आया। तो यहां पर कहते बुद्ध मनोज्ञ, बुद्धिमानों को समझ में आनी चाहिए। वाणी जो है उसका तीसरा जोन है। अब उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। बुद्ध मनोज्ञाय के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, वल्गु वाक्य या के अंदर बहुत सारी चीज होती है, मधुरिया गिरा के। लेकिन मोटा मोटी तीन, एक तो सूर ताल के प्रेजेंटेशन की दृष्टि से मधुरिया गिरा, सब्जेक्ट मैटर वाइज वल्गु वाक्य या, और सामने वाले को, अब देखो आपके पास बहुत सारी चीज बोलने को है और आपको बोलना भी बहुत आता है, इसका अर्थ ही नहीं कि सब कुछ बोल दो। बुद्ध मनोज्ञया माने सामने कौन पात्र बैठा है, उस पात्र को कितना पीरसना है, उसका लेवल कहां का है। आपके पास मतलब हमारे कीर्ति भाई पूरा डिस्पेंसरी लेकर बैठे तो जो आया उसको सारा सब पकड़ा दे, नहीं, जैसा रोग होगा वैसी दवाई होगी ना। तो बुद्ध मनोज्ञया प्रेजेंट मतलब पात्र के अनुसार, आपके पास सब्जेक्ट भी है, प्रेजेंटेशन भी है, लेकिन बुद्ध मनोज्ञया माने पात्र के अनुसार पीरसना है। तो ये सब कृष्ण हमारी तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकती, लेकिन गोपियाँ कृष्ण के लिए ये सारी बातें बोल रही हैं। आइए इसे हम समझने का प्रयास करें। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया। सबसे पहले कहते हैं मधुरया गिरा। इस पर हम थोड़ा सा विचार करें। हे कृष्ण, आपकी गिरा, आपकी वाणी मधुर है, ये प्रेजेंटेशन के अर्थ में है, ठीक है। तो मधुर के तीन अर्थ। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कृष्ण के वचन जितने मधुर है उतना मधुर और कोई बोल ही नहीं सकता। कृष्ण की बोलने में जो मधुरता है दूर दूर तक किसी में नहीं है। अच्छा, तो वो मधुर तो शब्द को थोड़ा सा डिफाइन किया जाए, थोड़ा सा उसका परिचय क्या है, तो इसके तीन अर्थ आचार्यों ने समझाया। वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपके बीच में तीन रखता हूं। मधुर का सबसे पहला अर्थ है मधु मध्यम तद इव राति इति मधुरा। बहुत रेयर सुनने को मिलेगा ये सारी चीजें हैं, हम तो मधुर मधुर कहते हैं। मधु मध्यम तद इव राति इति मधुरा। मधु मधुर या गिरा, कृष्ण के वचन कैसे हैं, कृष्ण की गिरी मधुरया। तो मधु का अर्थ है मध्यम। मध्यम माने मद, जो मद की भांति उन्मत्त बना दे वो है मधुर या गिरा। एग्जाम्पल थोड़ा सा लो हो जाएगा, लेकिन मेरे पास और कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। शराब पीकर आदमी मतवाला हो जाता है, जैसे शराब पीकर कोई मतवाला हो जाता है, मतलब आनंद आनंद हो जाता है, पीना मत, लेकिन वो उस टाइप की बात कर रहा हूं, पीने के बाद वो आनंद आनंद हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार कृष्ण के शब्दों को सुनकर आदमी मतवाला हो जाता है। तो मत्तम इव, मध्यम, मध्यम माने शराब, नशा, तो शराब की तरह तद इव राति, मतलब शराब की तरह जिस नशे को उत्पन्न करा दे उसे मधुर या गिरा कहते हैं। एक अच्छा, मधुर का दूसरा अर्थ है मधु अमृतम तद्वत मिष्टम। जो अमृत की तरह मधुर है, कृष्ण की वाणी अमृत की तरह मधुर है, इसलिए
उसे मधुर या गिरा कहते हैं, अमृत के समान। एक तो वो शराब के नशे मतलब नशा उत्पन्न करा देती हैं इसलिए मधुर कहते हैं, दूसरा अमृत की तरह मधुर है इसलिए मधुर या गिरा कहते हैं, और अब तीसरा है मधुराती ददाती इति मधुरा। कृष्ण की वाणी जो है ना मधु देती है। मधु माने शहद, माने हनी, माने हमको भिगो देती। कृष्ण जब बोलते ना भिगो देते हैं। कृष्ण की वाणी मधु देने वाली है, हनी देने वाली है, वो शहद देती है इसलिए मधुर या गिरा। ओके, तो ये हुआ प्रेजेंटेशन के अर्थ में। कृष्ण की वाणी का प्रेजेंटेशन 3 चीज है। एक तो वो नशा, वो प्रेजेंटेशन सुनकर नशा हो जाता है, अमृत की तरह मधुर लगता है, और शहद हनी की तरह वो हमें आप्लावित भिगो देती है, इसलिए मधुर या गिरा। अच्छा, वल्गु वाक्य या, अब वो सब्जेक्ट मैटर की बात, कृष्ण जो बोलते हैं वो सब्जेक्ट मैटर कैसी है, तो वल्गु वाक्य या। वल्गु का अर्थ होता है मनोहर। कृष्ण का जो सब्जेक्ट मैटर जो बोलते हैं बड़ा सुंदर, बड़ा मनोहर होता है। एक आचार्य ने उस पर बहुत सुंदर भाव दिया, टीका में आप देख सकते हैं। वो कहते हैं वल्गु वाक्य या वल्गुनी मनोहराणी वाक्यानि यस्याम तया। जो हमारे मन को हर ले, ऐसे वाक्य मतलब ऐसा सब्जेक्ट जो हमारे मन को आनंद आनंद कर दे, अर्थात जिसमें उत्तम स्वर है, उत्तम वर्णबंध मतलब 2 शब्दों को संधि विच्छेद मतलब सुसंगत, मतलब जब कोई व्यक्ति बोलता है, अब मैं भी बोल तो रहा हूं हिंदी में, अब इसमें पर्यायवाची बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। अब जब हम बोलते हैं ना तो किसी एक शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे पानी, वाटर, ठीक है, वाटर को जल भी कहते हैं, पानी भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, पय भी कहते हैं, बहुत सारी चीजें। वैसे हमारे व्याकरण में, हमारी भाषा में एक शब्द के बहुत सारे शब्द पर्यायवाची शब्द है। कृष्ण जब बोलते हैं तो उन एक शब्द के जितने पर्यायवाची हैं उसमें सबसे टॉप मोस्ट का जो शब्द होता है वो कृष्ण के मुख से निकलता है। बिल्कुल समय के अनुसार इस पूरे ब्रह्मांड में किसी चीज को बोलने के लिए जो सबसे टॉप शब्द होता है, सबसे उत्तम, वो कृष्ण के मुख से निकलता है। तो वल्गु वाक्य या का यह अर्थ है कि वल्गुनी मनोहराणी वाक्याम यस्याम तया। दूसरी लाइन में इसका सार है कि ऐसा वाक्य के अर्थस्य प्रियत्व आदिना, माने उस वाक्य के अर्थ को सुनकर आदमी प्रेमी हो जाए, प्रियत्व, उसे प्रेम मतलब वो प्रेमी बन जाए, ऐसा अर्थ। अर्थस्य प्रियत्ववादिना, मतलब जो बिल्कुल प्रिय लगे, ऐसे शब्द भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकलते हैं। श्रीपाद सनातन गोस्वामी लिखते हैं वल्गु वाक्य या के ऊपर, वल्गु वाक्य या माने अर्थ गांभीर्यम और सद्वर्ण निबंधनम। कृष्ण जब बोलते हैं तो उनकी वाणी में अर्थ की मतलब मीनिंग की, हमारी तरह मीनिंगलेस नहीं होता, अर्थों की गंभीरता होती है, और सद्वर्ण निबंधनम, और सद्वर्ण सुंदर सुंदर शब्द कृष्ण के मुख से निकलते हैं, और किस समय पर क्या बोलना। और कृष्ण जब बोलते हैं ना तो सुनने वाला व्यक्ति गदगद हो जाता है। आप विचार करो, कुरुक्षेत्र के रणांगन में जब कृष्ण अर्जुन को कह रहे होंगे, आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि अभी अभी कह रहे हैं, जब कृष्ण कह रहे होंगे कि अर्जुन भाई, ये जो मैं तुम्हें भगवत गीता सुना रहा हूं ना, ये मैं सबको नहीं सुनाता। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम विवस्वान मनवे प्राहो मनु इक्ष्वा कवे ब्रवीत। ये एक बार मैंने सुनाया था। सृष्टि के प्रारंभ में मैंने सूर्य देव विवस्वान को ये गीता सुनाई थी, विवस्वान ने मनु को सुनाई, मनु ने इक्ष्वाकु को सुनाई, और इस प्रकार एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु, इस प्रकार से यह भगवद गीता का ज्ञान परंपरा में बहता चला, परंपरा में आता गया। लेकिन अर्जुन,
सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। लेकिन अर्जुन, जैसे जैसे काल बीतता गया, ये ज्ञान भी काल के साथ, समय के साथ लुप्त हो गया। और आज स एवायम मया तेज्ञ योग प्रोक्त पुरातन। हे अर्जुन, आज वही दिव्य ज्ञान मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। मानो अर्जुन कहे, प्रभु मुझे ही क्यों? तो कृष्ण ने कितना सुंदर, उस समय अर्जुन गदगद हो गए। आचार्यगण लिखते अर्जुन रोने लगे। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम मेरे सखा हो, भक्तों सी में सखा चेती रहस्यम हेतु उत्तम। अर्जुन भाई तुम मेरे सखा हो, मैं तुम्हें दिल से अपना मित्र मानता हूं। जब इस प्रकार से कृष्ण कहते होंगे, अर्जुन का हृदय बिल्कुल गदगद हो जाता, आह्लाद से भर जाता है। कृष्ण की वाणी जो है वल्गु वाक्य या अपने भक्तों के हृदय में स्नेह उत्पन्न करने वाली है, अपने भक्तों के जीवन को आनंद से भर देती है भगवान श्री कृष्ण की वाणी। हम क्या ना, हम लोग सुनते नहीं है और अच्छे ऑथोरिटी से हम इसे समझने का प्रयास नहीं करते हैं। बाकी कृष्ण की वाणी, कृष्ण के शब्द भक्तों के दिल को नचा देती है, प्रेम प्रगटा देती है। हमें दूर कहां जाना, श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में ही चलिए कि विदुरो अपि युच्छ्त्वा कृष्णस्य परमात्मनः क्रीडियोपात्त देहस्य कर्माणि श्लाघनानि च। विदुर जी हस्तिनापुर को छोड़े और हस्तिनापुर को छोड़कर विचरण करते करते पूरे भारत में भ्रमण किए और फिर वे अंत में ब्रज वृंदावन गए। और वृंदावन में विदुर जी का उद्धव के साथ मिलन हुआ और विदुर जी ने उद्धव जी से कृष्ण के विषय में पूछा। तब उद्धव जी ने, सुखदेव जी कहते हैं, उद्धव जी ने देहन्यासम च तस्येव धीराणाम धैर्य वर्धनम। धीरों के धैर्य का वर्धन करने वाले भगवान श्री कृष्ण देहन्यास, अपने शरीर को, देह को न्यास माने धरती पर जब प्रकट किए, वहां से लेकर तस्येवम कृष्ण की सारी लीला उद्धव जी ने विदुर जी को सुना। ऐसा यहां पर कह रहे हैं कौन? सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को, कि देहन्यासम, कृष्ण का देह न्यास हुआ, तस्येव वहां से लेकर धीराणाम धैर्य वर्धनम अन्येषा दुष्करम तरम। जो धीराणाम धैर्य वर्धनम का अर्थ होता है, भक्त कृष्ण का चरित्र कैसा है? भक्तों की भक्ति बढ़ाने वाला। कृष्ण के चरित्र से क्या होता है? वात्सल्य रस वाले के हृदय में कृष्ण के प्रति वात्सल्य प्रकट होता है। माधुर्य के जो अधिकारी हैं उसे माधुर्य श्रृंगार प्रकट होता है। साख्य रस के अधिकारी को कृष्ण कथा सुनकर साख्य रस प्रकट उत्पन्न होता है, बढ़ता है, वर्धन होता है। दास्य अधिकारी को दास्य रस का वर्धन होता है। तो धैर्याणाम धैर्य वर्धनम, कृष्ण की लीला जो उद्धव ने विदुर को सुनाई, वो अपने अपने रस स्वभाव के अनुसार वर्धन करने वाली है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी बड़े क्रोधित होकर कहते हैं, लेकिन पशु नाम, लेकिन जो पशु प्रवृत्ति के लोग हैं, विक्रुवात्म नाम, पशु प्रवृत्ति के लोग कृष्ण कथा सुनकर उनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पशु प्रवृत्ति के लोगों के जीवन में कृष्ण कथा का कोई असर नहीं होगा। लेकिन सुखदेव जी अब मूल बात पर आते हैं जो यहां पर हमें चर्चा करनी है। कहते हैं, आत्मानम च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितम। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण की कथा विदुर जी को सुना रहे हैं और जन्म से लेकर कृष्ण का जन्म मथुरा में कारागार में हुआ और फिर किस प्रकार से गोकुल आए, पूतना, आघासुर, बकासुर, तृणावर्त को मारा। 11.5 वर्ष की उम्र में वे ब्रज छोड़कर चले गए। फिर मथुरा जरासंध के साथ युद्ध करते हुए मथुरा छोड़कर द्वारिका गए। द्वारिका में 16,108 विवाह किया, 128 वर्ष तक लीला किए और कृष्ण इस संसार को छोड़कर चले गए। अब देखिए ये पॉइंट यहां पर आया है।
लेकिन उद्धव जी विदुर जी को कहते कि विदुर, ध्यायन गते भागवते, कृष्ण जब इस संसार को छोड़कर जा रहे थे तो स्पेशल कृष्ण ने मुझे बुलाया, मुझे प्रभास क्षेत्र में लेकर गए, मुझे पूरी भागवत का ज्ञान प्रदान किया। और मैं और मैत्रेय हम दोनों साथ में वहां पर प्रभात में थे। कृष्ण ने कहा था, कृष्ण ने विदुर जी आपको याद किया था, कहा था कि मेरे विदुर जब आए तो ये भागवत केवल एक विदुर को तुम दे देना। अभी तो विदुर जी से मिलने का कोई स्कोप नहीं, लेकिन विदुर को दे देना। अब देखो सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं, ध्यायन गते भागवते, भगवान जाते समय इस भुवंडल को छोड़ के समय विदुर को याद किया, दासी पुत्र को याद किया। इतना सुनकर ही रुरोध प्रेम विह्वल, विदुर जी जोर जोर से रोने लगे। रुरोध प्रेम विह्वल, ये मेन शब्द है। कृष्ण की वाणी ऐसी है ना, जब कोई, कृष्ण तो चले गए, कृष्ण तो संसार छोड़कर अपने धाम में चले गए, लेकिन उस वाणी को, उस शब्द को सुनकर विदुर जी रुरोध प्रेम विह्वल, उच्च स्वर से रोने लगे, प्रेम में विह्वल हो गए। मेरे कहने का अर्थ यह है कि कृष्ण की वाणी प्रियत्ववादिना, प्रेम को पैदा कर देती है, यदि ठीक से अच्छे सोर्स से सुना जाए, गुरुदेव के चरणों में बैठकर इसको अच्छे से सुना जाए तो कृष्ण की वाणी प्रेम प्रगटा देती है, स्नेह उत्पन्न कर देती है। तो इस प्रकार से वाणी की महिमा श्री गोपिया निवेदन कर रही है। मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया। आइए, वाणी की तीसरी महिमा क्या है? बुध मनोज्ञया। मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया, बुध मनोज्ञया, बुध मनोज्ञया, बुध मनोज्ञया। कुछ लोग चेक करने लगे, ये चिपक नहीं गया ना? पहले के जमाने वो कैसेट चिपक जाती थी ना, एक ही चीज 2-2-3 दिन ऐसा छोटी नहीं थी गयु तम तारे। मैं ही 3 बार बोला, क्योंकि हमें बुध मनोज्ञया के ऊपर थोड़ा सा समझना है। सो कृष्ण की वाणी का तीसरा गुण है बुध मनोज्ञया। आचार्यों ने इस पर बहुत इसका परिचय दिया। बुध मनोज्ञया कहते हैं, बुध मनोज्ञया का अर्थ क्या है? बुध मनोज्ञया, बुधानाम विदग्धानाम मनोज्ञया, अर्थात भगवान उस वाणी से विदग्ध है। इसे हम बाद में समझेंगे, पहले मैं आपको एक पॉइंट बताऊं। भगवान तो दूर की बात है, भगवान श्री कृष्ण के जो रसिक भक्त है, रसिक भक्त, रसिकों की वाणी सब लोग नहीं समझ सकते। रसिकों की वाणी रसिक ही समझ सकता है, सब लोग नहीं समझ सकते। इसलिए किसी एक रसिक ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि अरसिकेषु कवित्व निवेदनम शिरसी माँ लिख, माँ लिख, माँ लिख। हे विधाता, मेरे सिर में, मेरे भाल में तुझे मेरा जैसा नसीब बनाना है, मेरा भाग्य जैसा बनाना है बनाना, लेकिन मैंने जो लिखा है, मैंने जो बोला है, वो जो रसिक नहीं है, ऐसा अरसिक आदमी मेरी वाणी कभी न सुने, कभी न सुने, कभी न सुने। विधाता, मुझे जो देना है दो, जीवन में मेरा जो भी बिगाड़ना है बिगाड़ दो, लेकिन मेरी वाणी कोई गलत आदमी, अरसिक जन न सुने, अरसिकों के द्वारा। तो यहां पर बुध मनोज्ञया का अर्थ है विदग्धाना नाम, अर्थात अब रसिकों की वाणी ही सब लोग नहीं समझ सकते, तो रसिक शेखर भगवान कृष्ण की वाणी कौन जान पाएगा? तो बुध मनोज्ञया का एक अर्थ यह है कि रसिक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की वाणी बुध माने श्रीमती राधा रानी ही समझ सकती है, या फिर बुध मनोज्ञया श्रीमती राधा रानी या गोपियों की, सखियों की वाणी
भगवान श्री कृष्ण ही समझ सकते हैं, इसका यह अर्थ होता है। बुद्ध मनोज्ञया, कृष्ण आप इतने बुद्धिमान हो कि हम गोपियों की या राधा रानियों की भाषा वाणी आप ही समझ सकते हो, बुद्ध मनोज्ञया। या फिर कृष्ण की वाणी राधा या गोपियां जो बुद्धिमान है वे ही समझ सकते हैं। ब्रह्मा और अन्य जिसे हम बुद्धिमान कहते हैं उनके बस की बात नहीं है कि वे कृष्ण की वाणी को समझ सके। इसका ये एक अर्थ हुआ, सबसे ऊंचा अर्थ ये है। लेकिन और थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो बुद्ध मनोज्ञया का और एक अर्थ कहते हैं अबुधानाम अपि मनोज्ञया। अबुध, अबुध माने मूर्ख, अबुध माने मूर्ख, अज्ञानी, जो ज्यादा शास्त्र वास्त्र जानते नहीं है, तो कहते हैं अबुध। मूर्ख व्यक्ति भी जिनकी वाणी को सुनकर आनंदित हो जाए, अज्ञानी मूर्ख भी जिनकी वाणी को सुनकर आनंदित हो जाए, या अज्ञानी मूर्ख को भी जिनकी वाणी समझ में आ जाए, तो किमुत पंडित, तो पंडितों की तो बात ही क्या है। जब एक साधारण से अज्ञानी को कृष्ण की वाणी समझ में आ जाती है, या साधारण से अबुध अज्ञानी को कृष्ण की वाणी मनोज्ञ मन को आनंद देती है, तो किम उत पंडित, तो पंडितों के बारे में तो क्या कहना है? अब देखो, आप लोगों को तो मैं अज्ञानी नहीं कह सकता, मैं तो अज्ञानी ही हूं। 10वीं फेल आदमी अज्ञानी नहीं तो और क्या हो सकता है। तो हम जब ये पढ़ते हैं तो हमें इतना रस आता है, इतना आनंद आता है। मेरे जैसे अज्ञानी को जब कुछ इसमें टप्पा नहीं पड़ता, कोई भाव कुछ पकड़ नहीं पाते, फिर भी जब इतना रस इतना आनंद, तो फिर जो पंडित है उसमें तो कहना, वो तो रात दिन इसी में रमण करते रहते हैं। सो अबुधा नाम अपि मनोज्ञया किम उत पंडिता नाम। अबुध लोगों को जब आनंद देती है तो पंडितों के बारे में क्या कहना। अब देखो और आगे धीरे धीरे इसको बढ़ाते जा रहे हैं। ये किस पर चल रहा है? बुद्ध मनोज्ञया। भगवान श्री कृष्ण की वाणी बुद्ध मनोज्ञया। तो इसका एक आचार्य कहते हैं बुधा नाम ज्ञानिनम अपि मनोज्ञया, अर्थात बुधा नाम कृष्ण की वाणी ज्ञानिनम। यहां ज्ञानी का अर्थ क्या है पता है? वो जो ब्रह्म ज्ञानी, वो निराकार ब्रह्म, निराकार ज्योति में जो लगे रहते हैं ना, क्लेश अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जिसका चित्त अव्यक्त में आसक्त है, जो निराकार, जो बिल ज्योति अंधकार में पड़े रहते हैं, ये उनकी बात है। तो बुधा नाम ज्ञानी नाम, जो ज्ञान मार्ग के साधक है। कृष्ण की वाणी बुधा नाम ज्ञानी नाम, ज्ञान मार्ग के साधक जो निराकार का ध्यान करते हैं, अव्यक्त में आसक्त रहते हैं। अपि मनोज्ञया, उसे भी आनंद देती है। ज्ञान मार्ग के साधक जिसको कृष्ण के साथ कोई लेना देना नहीं, वो तो ज्योति, बस हमें ब्रह्म ज्योति चाहिए, ब्रह्म ज्योति का ध्यान करो, निराकार। लेकिन ऐसे साधकों को भी बुधा नाम ज्ञानी नाम अपि मनोज्ञया, उसे उसके मन को भी, मतलब शुष्क हृदय वाले ज्ञानियों के मन को भी आनंद आनंद कर देती है कृष्ण की वाणी है। थोड़ा सा लंबा संस्कृत टीका है लेकिन आनंद आएगा, आप इसको थोड़ा पढ़िए। सर्व निर्विशेषम परम ब्रह्म न तद अतिरिक्तम किंचित दृश्य जानम मिथ्याभूतम एतादृशम हृदयम तेषाम अप्याकर्षणम किम व्यक्तम भक्ता नाम। बहुत सुंदर बात कर दी। जो पूर्ण रूप से निर्विशेष पर ब्रह्म में आसक्त है और निर्विशेष ब्रह्म में रात दिन ब्रह्म समाधि निराकार में की समाधि में लगे रहते हैं, तद अतिरिक्तम, उस निराकार के अतिरिक्त किंचित दृश्य जानम, वो सारी चीज को मिथ्या अभूतम, सब मिथ्या है। निराकार के अलावा सब कुछ मिथ्या, कृष्ण भी मिथ्या, ऐसा जिसकी सोच है। एतादृशम हृदयम तेषाम, ऐसे लोगों के हृदय में या कान में जब कृष्ण की वाणी जाती है, जिसे कृष्ण से कोई लेना देना नहीं, निराकार ब्रह्म में आसक्त है, लेकिन एतादृशम हृदयम येषाम तेषाम अपि
कर्णम, उनके कर्ण को आनंद देने लगती है, तो फिर हरि भक्तों के कान को, हृदय को आनंद दे, इसमें क्या आश्चर्य हो सकता है। आचार्यगण लिखते हैं कि ज्वलंत प्रमाण श्री सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव, ये पूरा ये जो टीका है ना, ये सुखदेव गोस्वामी के लिए समझ लीजिए आप, कि किंचित दृश्य जानम मिथ्याभूतम, जब से इस बालक का जन्म हुआ 16 साल की उम्र में, तो संसार को मिथ्या मानता था, माता पिता को भी मिथ्या। बालक कम से कम एटलीस्ट माँ के साथ तो रहता है, जन्म लेते ही माँ को छोड़ दिया, अपने पिता को छोड़ दिया, और दिगंबर अवस्था में कोई वस्त्र कुछ नहीं, घर से भाग गया। सुखदेव गोस्वामी आगे आगे, व्यास मुनि हा पुत्र, लेकिन नहीं आए। और घोर वन में जाकर सुखदेव जी ब्रह्म समाधि, निराकार ब्रह्म, जैसे यहां पर कहा गया है, निर्विशेषम परम ब्रह्म तद अतिरिक्तम कश्चित न जानम, तो निर्विशेष ब्रह्म में लग गए और ब्रह्मानंद लेने लगे, ब्रह्म का आनंद लेने लगे। लेकिन श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है, उस समय सुखदेव के कान में कृष्ण की वाणी गई। भागवत क्या है? कृष्ण की वाणी। सुखदेव के कान में बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम अहो बकीयम स्तनकाल कूटम झिमघा सया पायन अपीय साध्वी। जब ये कृष्ण की वाणी सुखदेव के कान में गई, वो ब्रह्म समाधि तुच्छ लगने लगी। अब हम लोग ब्रह्म समाधि भी क्या जानेंगे हैं? हमें तो कथा के बाद अच्छा भोजन मिल जाए तो हमारी ब्रह्म समाधि वहीं पर कंप्लीट हो जाती है कि आहा वो हो गया, आज का तो आनंद कंप्लीट हो गया। वो क्या ब्रह्म समाधि जानेंगे। हालांकि ब्रह्म समाधि भी बहुत बड़ा सुख है। ब्रह्म समाधि माने क्या जानते हैं? इस दुनिया में रात दिन दुख है, ठीक है, ये सारे दुखों से जब जीरो लेवल पर मुक्त हो जाते हैं तो ये ब्रह्म समाधि तक बंदा पहुंच जाता है। माने संसार से कोई न लेना न देना, कोई चिंता, कोई दुख नहीं। हमारे जीवन में तो वो भी सुख कहाँ है? तो वो इतना सुखी आदमी होता है ब्रह्म समाधि में। लेकिन जब उन्होंने कृष्ण की वाणी सुनी तो ब्रह्म समाधि तुच्छ लगने लगी, मचल गए, छटपटाने लगे, कहां ये वाणी कहां से आ रही है। फिर खोजा पकड़ा और सुखदेव जी ने भागवत ऐसा पढ़ा कि स्वयं ही महाभागवत बन गए। और इसीलिए वहां नैमिषारण्य में सूत जी को कहना पड़ा, आत्म रामश्च मुनियो निर्गंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहे तुकिम भक्ति इत्थम भूत गुत गुणो हरि है। कृष्ण की वाणी ही कुछ ऐसी है, इनके शब्द ही कुछ ऐसे हैं जो आत्मा में रमण करने वाले, जो अपने बाप के नहीं हुए, अपने घर के, अपनी ऑफिस, जो धन संपत्ति के, अपनी पत्नियों के नहीं हुए, जगत छोड़कर भगवा धारण कर लिए, लेकिन वे जब कृष्ण को सुनते हैं तो कृष्ण के पीछे लट्टू हो जाते हैं, कृष्ण के पीछे पागल हो जाते हैं। तो जब ऐसे निराकार में आसक्त होने वालों की यह स्थिति है तो भक्ता नाम, तो फिर भक्तों के लिए तो क्या कहना। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत वाणी है, अद्भुत गिरा है। मधुर या गिरा वल्गुवा क्या। श्रीपाद जीव गोस्वामी वैष्णव तोषिणी में मधुर या गिरा, वल्गु वाक्या और बुध मनोज्ञया, ये तीनों शब्दों को लेकर कृष्ण की वाणी की महिमा बताते हैं। अब मैं भी इतना ज़्यादा संस्कृत नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जितना पकड़ पाया कम से कम आपके बीच में रख दूँ। इसका डिस्क्रिप्शन तो फिर कभी दूंगा, लेकिन कृष्ण की वाणी में क्या क्या गुण है आप गिनी। 21 गुण, 21 कृष्ण की वाणी में मुझे जो दिखाई दी है आचार्यों की, केवल एक टीका में, ऐसी 50 टीका है। ये सब पढ़ने जाएंगे तो पूरा थोथा ही भर जाएगा, केवल 7 दिन उसी पर चलेगा। लेकिन मुझे जो एक आचार्य की बात, एक टीका में जो मुझे अभी आपको यहाँ दिखा, कृष्ण की वाणी में पहला गुण है वो अति मधुर। दूसरा स्वर विशेष, कृष्ण की वाणी का जो स्वर है वो विशेष है। तीसरा वर्ण विन्यास विशेष है। चौथा प्रेम मृदुलता है, कृष्ण की वाणी में प्रेम मृदुलता है।
पांचवा गुण है प्राणी मात्र को रुचि देने वाली वाणी है। कभी कभी हम बोलते हैं ना तो पुरुषों को अच्छा लगता है, स्त्रियां मुंह बिगाड़ती हैं, लो ये तो हम पर ही बोल रहे हैं। कभी स्त्रियों की बात आती है तो पुरुषों का है, तो ऐसा होता है। लेकिन कृष्ण जब बोलते हैं तो प्राणी मात्र को रुचिकर लगता है। पांचवा गुण। छठा गुण, कृष्ण की वाणी सुंदर पद से समन्वित होती है। सातवां गुण, आकांक्षा के सौष्ठव से युक्त होती है। आठवां, योग्यता के सौष्ठव से युक्त होती है। नौवां गुण, आसक्ति के सौष्ठव से युक्त होती है। शिवाजी गोस्वामी कहते हैं 10वां गुण, सुवंत माने तिरंग पद समूह कृष्ण की वाणी में, ये व्याकरण की बात है, वो इसमें युक्त होता है। कृष्ण की वाणी 11वां अर्थज्ञ, 12वां मनोज्ञ। कृष्ण की वाणी का 13वां गुण है शब्द की अभिध्या से पूर्ण होती है। अब हम तो यही नहीं जानते तो अच्छी वाणी कैसे बोलेंगे। मतलब कुछ लोगों को अच्छा बोलना है लेकिन उसका टेक्निकल प्रोसेस ही नहीं पता है कि भाई वाणी में ये चीज भी होती है। जब वे होती हैं वो पहले पता चले, फिर उसकी प्रैक्टिस हो और फिर जीवन में शायद आ जाए। तो कृष्ण की वाणी शब्द की लक्षणा से पूर्ण होती है। 15वां स्वभाव है व्यंजन आवृत्ति से पूर्ण होती है। कृष्ण की वाणी का 16वां स्वभाव रस से पूर्ण होती है। 17वां भाव से पूर्ण होती है। 18वां अलंकार से पूर्ण। अलंकार समझते ना, किसी भी चीज को मतलब हमारे गुजराती में लड़ा कर हम लड़ावी ने बोलवानु, कोरा कोरा नहीं, एक एक मतलब उसका अलंकार दे देकर सजाते हुए। जैसे राधा रानी ने कहा कि कृष्ण आज मैं कैसी लग रही हूं। अब हमारी तरह कोई होता तो अच्छी लग रही हो और क्या है, अच्छा है? लेकिन कृष्ण का जवाब ऐसा नहीं होता। कृष्ण कहां से शुरू उपाड़ करते हैं, क्या बताऊं राधे, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि आप कैसी लग रही हो। ये जो तुम्हारा मुख कमल है आज बिल्कुल पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चमक रहा है, और तुम्हारे चंद्र के ऊपर फिर वो जो बिंदी लगी हुई है तो चंद्रमा में भी दूसरा चंद्रमा। राधे तुम्हारे हाथों में जो नाखून है वो बिल्कुल अर्ध चंद्रमा की तरह चमक रहा है। एक तो तुम्हारा मुख चंद्रमा, उसके ऊपर बिंदी, दूसरा चंद्रमा, 10 हाथों के और 10 चंद्रमा, 12 चंद्रमा और 10 चंद्रमा आपके चरणों में है। 22 चंद्रमा तुम्हारे अंदर समा गए हो और फिर जो आभा प्रकाश निकलता है राधे, ऐसा तुम्हारा आज दर्शन। कृष्ण कुछ ऐसे, मतलब मैं भी पूर्ण नहीं बोल पा रहा हूं, आचार्यों ने संस्कृत में इसको बहुत अच्छे से दिया है। तो अलंकार से पूर्ण कृष्ण की वाणी का 19वां गुण है अर्थ से पूर्ण, निरर्थक नहीं। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं तो उसमें अर्थ नहीं होता, अर्थ से पूर्ण। 20 गांभीर्य से पूर्ण, और 21वां जो बुद्धिमान लोग है, बुद्धि जन को आनंद देने वाली कृष्ण की वाणी है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब गंभीरा में रहते थे तो गंभीरा जानते ना, जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु अपने अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण की वाणी का स्मरण करते थे। ये राधा भाव में राधा रानी और ये गोपियां कैसे वाणी को स्मरण कर रही है। श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की वाणी को याद। आइए, महाप्रभु क्या आस्वादन करते थे। महाप्रभु का आस्वादन कुछ इस प्रकार से होता था। ये महाप्रभु के शब्द हैं। कंठेर गंभीर ध्वनि नवदन ध्वनि जिनी जार गुण कोकिल लाजाय। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कंठेर गंभीर ध्वनि। भगवान श्री कृष्ण की ध्वनि कैसी है? कंठ से गंभीर है और नवघन ध्वनि जीनी, और मेघ के समान गंभीर है। और कृष्ण जब बोलते हैं तो जार गुणे कोकिल लजाए। इस दुनिया में सबसे अच्छी वाणी किसकी होती है? कोयल की।
कोयल अच्छा गाती है ना, लेकिन कृष्ण जब गाते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जार गुणे कोकिल लजाए, कोयल को भी लज्जा आ जाती है, अरे अरे अरे, वो भी छुप जाती है कि ये इतना अच्छा गाता है। कंठेर गंभीर ध्वनि नव धन ध्वनि जीनी, जार गुणे कोकिल लजाए, जिसके गुण से कोकिल लज्जित हो जाती है। आगे कहते हैं, लंबा है, धैर्य रखिएगा। तार श्रुति एक कणे, डूबे जग तेर काने, पुन काण बाहुडी ना आय। तार श्रुति एक काणे, डूबे जग तेर काणे। उस कृष्ण की वाणी एक बार यदि कोई सुन लेता है तो डूबे जगतेर, सारे संसार के कान उसमें डूब जाते हैं। और एक बार कृष्ण की वाणी में कोई डूबा, देखो समंदर में जो डूबा वो मरा, लेकिन कृष्ण की वाणी में जो डूबा वो भवसागर को पार कर गया, वो तर गया, वो तरा। महाप्रभु तो अपने भाव में कहते हैं कि हे सखी, मैं तो डूब गया हूं कृष्ण की वाणी में, तुम कुछ उपाय करो, मैं तो अब कृष्ण की वाणी में बह रहा हूं। कहते हैं, कृष्णेर जे शब्द गुणे, हरि ले या मार काणे, एबे ना पाय तृष्णा मरी जाय। कृष्ण के शब्दों में जो गुण है, हरि ले अमार काणे, एबे ना पाई तृष्णा मरी जाए, वो हमारे कान को हर रहे हैं, हमारे हृदय को हर रहे हैं। और कृष्ण की बातों को सुनते सुनते मुझे मेरी तृष्णा मीट नहीं रही है। से मुख भाषित अमृत है ते परामृत, स्मित कर्पूर ताहारे मिश्रिता। कहते हैं एक तो इतनी इसकी सुंदर वाणी सुंदर है, ऊपर से इसका चेहरा भी इतना सुंदर है। यार बोल, वो मैटर, वो साउंड, वाइब्रेशन इतना अच्छा है, और बोल भी मतलब दिखने में भी अच्छा है। तो ये कैसा लगता है, स्मित, और ऊपर से वो हंसते हुए बोलता है, तो उसका स्मित कर्पूर ताहारे मिश्रित, मतलब एक तो चावल, ऊपर से दूध, ऊपर से उसको गर्म करो, ऊपर से उसमें शक्कर डालो, और वो स्माइल जो है ऊपर से उसमें कर्पूर डालो, इतनी सुंदर खीर बनाकर परोसता है। आगे कहते हैं, शब्द अर्थ दुई शक्ति, नाना रस करे व्यक्ति, प्रति अक्षरे नर्म विभूषित। शब्द और अर्थ दोनों की शक्ति अनेकों रस में उसको विभक्त करती है, और कृष्ण के बोलने में प्रत्येक अक्षर में नर्म विभूषित, मतलब विभूषण होता है। अरे ये सब छोड़ो, मैं आपको इतना कहता हूं, कृष्ण अर्जुन के साथ युद्ध करने गए थे। ऐसा कोई प्रवचन घर से कोई नोट्स बनाकर और तैयारी करके रात भर हम जग कर नहीं कर रहे थे। ऐसे मूड में युद्ध करने का मूड था, कोई ऐसा प्रिपरेशन नहीं था कि हम सेमिनार करेंगे, प्रवचन करेंगे। एक तो मूड बंदे का नहीं था, और फिर वहां युद्ध रणभूमि में जाकर अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता था। तो उसी समय कृष्ण ने खड़े खड़े 45 मिनट, ज्यादा समय नहीं, 45 मिनट भगवत गीता सुनाई। 500 श्लोक की गीता, 5000 वर्ष बीत गए, लेकिन आज तक उसे कोई पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया। आप बताओ, बस स्वाभाविक रूप से 45 मिनट कृष्ण ने जो ज्ञान दिया, युग युग तक वह ज्ञान अमर रहेगा लोगों का। भक्तों, इस दुनिया में कोई आदमी ज्ञान देता है ना, वो एक्सपायर हो जाता है। कोई भी, जैसे साइंस जो है, साइंस बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन साइंस की मेहनत भी सर्टन डेट तक होती है। फिर कोई नया आविष्कार होता है तो उसे डिलीट कर देते हैं। भले अब अपडेट आ गया, अपडेशन होता है ना, अभी अपडेट हो गया, अभी हमारा ज्ञान अपडेट हुआ। लेकिन कृष्ण 5000 वर्ष पहले या युग युग पूर्व जो गीता का ज्ञान दिए, कोई अपडेट की जरूरत नहीं। एज इट इज उसे यदि पढ़ो तो आज भी हमारा कल्याण हो सकता है।
कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, से अमृतेर एक कण, उस कृष्ण की वाणी रूपी अमृत का एक कण, कर्ण चकोर जीवन, कर्ण रूपी चकोर का जीवन है, और कर्ण चकोर जिए से ही आश। कर्ण रूपी चकोर, जैसे चकोर चकवा चंद्रमा की चांदनी की आशा रखता है, अपना ये स्वाति नक्षत्र, तो ठीक उसी प्रकार मेरा कर्ण रूपी चकोर कृष्ण के शब्द की आशा से जी रहा है, कब मुझे सुनने मिलेगा। मुझे ये पूरा कहने के पीछे मेरा जो उद्देश्य था वो ये था, मुझे आपको ये दिखाना था। अद्भुत चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भाग्यवश कभू पाय, अभाग्ये कभू ना पाय, भाग्यवश कभू पाय, अभाग्ये कभू ना पाय, ना पाइले मर ये पिया से। कृष्ण की वाणी का ये सौष्ठव, भगवान श्री कृष्ण की वाणी भाग्यवश, जिनका भाग्य है वही सुन सकता है। कृष्ण का ये भाव, ये भाषा, ये वाणी, भाग्यशाली लोग ही इसका स्मरण करते हैं, इसका चिंतन करते हैं, इसका श्रवण करते हैं। और जो लोग कृष्ण की वाणी का श्रवण स्मरण चिंतन नहीं करते तो क्या करेंगे? ऐसे मूंगा मूंगा तो बैठे नहीं रहेंगे, तो दुनिया का स्मरण करेंगे। फलाने का क्या होगा, न्यूज में क्या हुआ, किसको जेल में डाला, किसको जेल से निकाला, युद्ध क्या हुआ, ये क्या हुआ, दुनिया की चर्चा। तो यहां पर कहते हैं भाग्यवश कभू पाए। ये कृष्ण की वाणी, कृष्ण का स्मरण चिंतन भाग्यशाली लोग ही कर सकते हैं। अभागे लोग तो दुनिया का स्मरण करते हैं और दुनिया के स्मरण करते करते ही जीते हैं और मरते रहते हैं। लेकिन धन्य है वो लोग, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भाग्यशाली है वो लोग जो मधुर या गिरा वल्गु वाक्य या बुद्ध मनो गया, ऐसी भगवान श्री कृष्ण की वाणी का श्रवण करते हैं। गोपियों ने रोते हुए प्रार्थना की, हमें हंसते हुए मिल रहा है? लेकिन हमें उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमें आसानी से प्रभुपाद जी ने दे दिया है। तो यहां पर गोपियां कहती हैं, मधुर या गिरा वल्गु वाक्य या बुद्ध मनोज्ञा। है कृष्ण, आपकी वाणी इतनी मधुर है, इतनी इतनी सुंदर है कि आपकी वाणी सुनकर हम तो आपकी ही हो गई, हम आपकी दासी हो गई। दूसरी लाइन में विधि करी रीमा, विधि करी माने दासी। आदेश विधानम इति विधि, विधि का अर्थ है विधान और विधान का अर्थ है आदेश। जो स्वामी, जो मालिक विधि विधान बनाता है और विधि विधान बनाकर आदेश देता है और जो उसे फॉलो करते हैं उसे कहते हैं विधि करी। अपने स्वामी के द्वारा बनाई हुई विधि का जो पालन करते हैं उसे विधि करी कहते हैं, दैट मीन्स दासी। तो विधि करी माने दासी। कृष्ण, हम आपकी दासी हो चुकी है। भक्तों, जिस वाणी को सुनकर वो वाणी दास न बना दे तो वह कृष्ण की वाणी हो ही नहीं सकती है। ये कृष्ण की वाणी जो है ना, ये भगवा पहना देती है। कृष्ण की वाणी संसार छुड़वा देती है। कृष्ण की वाणी वैराग्य प्रगटा देती है। कृष्ण की वाणी विधि करी विमा दासी बना देती है। ये तो हमने ठीक से सुनी नहीं है, हम लोग तो इसको ठीक से गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। बाकी कृष्ण की वाणी की बड़ी महिमा है। गोपियाँ कहती है, कृष्ण आपकी वाणी सुनकर तो हम आपकी दासी हो गई है। विधि करी मीमा, एक आचार्य ने कहा इमा, विधि करी, फिर शब्द है ना इमा, विधि करी इमा। इमा माने इदम, इदम माने गोपियाँ कहना चाहती हैं कि आपकी वाणी को सुनकर हमारी ये अवस्था हुई है। गोपियाँ इमा माने इदम अपनी अवस्था को दिखा रही है। विधि करी, हम आपकी दास, आपकी वाणी सुनकर आपकी दासी हो गई है। और इमाम, हमारी इदम ऐसी अवस्था हो गई। कैसी अवस्था हो गई? तो कहते हैं हे वीर मुहियती, हम लोग मूर्छित हो गई है।
आपकी वाणी ने हमें मूर्छित कर दिया है, आपकी वाणी ने हमें मुग्ध कर दिया है, आपकी वाणी ने हमें मोह में डाल दिया है। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत वाणी। कृष्ण कभी कभी राधा रानी को कहते थे, राधे राधे तुम मेरे प्रति इतना कठोर मत बनो, राधे तुम मेरे प्रति मृदु बनो, मेरे प्रति तुम सरल हो जाओ। राधे मैं सत्य बोलता हूं, तुम ही मेरा प्राण हो, तुम ही मेरा सर्वस्व हो, तुम्हारे बिना मेरी कोई अन्य गति ही नहीं है। कृष्ण जब ऐसा बोलते थे तो राधा रानी गदगद हो जाती, और आज राधा को वो बात याद आ रही है। कृष्ण कभी किसी गोपियों से मिलते थे, किसी एक गोपी से मिलते थे तो गोपी से कहते थे कि हे प्रिय, प्रिय तुमसे बढ़कर मेरे लिए और कोई प्रिय है ही नहीं, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। तुम जानती हो, कल एक ज्योतिष हमारे गांव में आया था, सबके हाथ देख रहा था। मेरी मैया ने कहा कि मेरे लाला के हाथ देख लो, तो मेरा हाथ दिखाया। तो जानते हो ज्योतिष ने कहा, क्या कहा, इसकी शादी जो है ना तुम्हारे साथ ही होने वाली है। मतलब वो जो गोपी होती थी ना तुम्हारे, लेकिन ये डायलॉग सभी गोपियों को कहते थे। पहले इस गोपी को कहते थे तुम्हारे साथ होने वाली, दूसरी गोपी से मिलके गोपियों को आज ये सब स्मरण हो रहा है, गोपियों को आज ये सब याद आ रहा है कि हे कृष्ण आपकी वाणी हमें याद आ रही है। कृष्ण आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए, प्रकट होकर आप वो कुछ वचन बोलिए, आप आकर फिर से हमको प्रिया कहिए, आप हमको प्यारी कहे, आप हमारे आंसू पोंछें, आप हमें आलिंगन दीजिए और अपने अधरामृत का पान कराकर हमारा ताप दूर कीजिए। इस प्रकार गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को प्रकट करना चाहती हैं। यद्यपि गोपियाँ अपनी पीड़ा प्रस्तुत कर रही हैं कि आप आकर हमारी पीड़ा दूर कीजिए, पुनः मैं आपको याद कराऊं, गोपियों को अपनी पीड़ा से कोई मतलब नहीं है, वो तो मरने के लिए तैयार है। गोपियां अपनी पीड़ा दिखाकर श्याम सुंदर की पीड़ा दूर करना चाहती हैं। ये गोपियों का गूढ़ भाव है। कहती हैं कि हमारी पीड़ा दूर करो हमारे सामने प्रकट होकर, लेकिन वास्तव में वो कृष्ण की पीड़ा दूर करना चाहती है। गोपियों का ये दिव्य भाव गोपी गीत में अमर रहेगा। हरे कृष्ण। आधे श्लोक की व्याख्या हुई है, आधा श्लोक कल लेंगे और फिर जो भी हो सके तव कथामृतम अगला श्लोक प्रसिद्ध, तो आगे बढ़ेंगे। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। आप सब भक्त बहुत श्रद्धा से, धैर्य से इस कथा का श्रवण करते हो और इसी से ही हमारा उत्साह बढ़ता है कि हम कुछ आचार्यों की बातों का श्रवण करें, मंथन करें। बस इसी प्रकार करुणा बनाए रखिएगा, प्रेम बनाए रखिएगा। मैंने पहले ही कहा कि मैं इस गीत के भाव को नहीं जानता हूँ, आचार्यों के शब्द प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुछ लोग तो मुझसे भी अधिक इस भावों को जानते होंगे, क्योंकि आप उस अवस्था में हो, आप उस ऊंचाई में हो। तो आप हमें प्रार्थना, आप हम पर कृपा कीजिएगा कि हम इस भाव को समझ सकें और गोपियों के ये अमूल्य भाव पर हम हमारा जीवन व्यक्त कर सकें। हरे कृष्ण। आइए जय जयकार के साथ आज के सत्र को हम विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।